Yesterday, we completed the features of the partnership. Whether a relationship is a partnership or whether an association is a partnership depends on the presence of those five elements. First element is it is an association of two or more persons, right? Minimum two partners, maximum 50 partners. This is not applicable to firms constituted by professionals under specific act, right? Then uh, persons are only those persons which are like have separate legal entity status in the eyes of law. So therefore partnership as such is not a is not a person and cannot be a partner, or two partnership cannot form a partnership. Company LLP are the separate legal entities, and therefore, right, they can be a partner in a firm or they can start a new partnership by coming together. Then second was your business, ठीक है, or agreement. Second was agreement. Partnership is result of an agreement and not a status as per section 5 of that, right? Then partnership, a person can be a member or a partner of a firm because of the agreement and not a status, and therefore members of HUF are not partners, and Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business do not become partner as such. Barabar? Next. The third one is business. I said business must be in existence. A partnership to carry on future business is not a partnership. I simply mean बिजनेस जो पार्टनरशिप के अंडर करना है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, एंड दैट बिजनेस शुड बी लीगल बिजनेस, एंड इंटेंशन ऑफ द बिजनेस इज टू acquire the gains, to acquire the profits, make the profits. So a charitable purpose के लिए partnership is not a suitable organization, because a partnership cannot be floated for a charitable purpose. That can be done through trust, or you can say by floating a company under section 8 of the Companies Act. Section 8 companies उनको बोला जाता है. That was the third, right? Business. The fourth is sharing of the profits is prima facie evidence of the existence of the partnership. When I say prima facie means, right, on first instance, if the association of the persons, right, is there and they are sharing profits, then we may say there exists a partnership, but that need not be partnership. That is a mandatory condition नहीं है. That is a test one, sharing of the profits. So sharing of the losses is not essential element. What is more important is the sharing of the profits. If partners can come together, members can come together and agree that one or more of the partners can only share profits, that will do, like partner in profit only, or a minor can be admitted only for his benefit, matlab he won't be sharing the losses. That is possible. But an agreement to share loss and not the profits cannot be a partnership agreement. Try to understand. So sharing of the profits is essential, one of the essential element. It is a prima facie evidence of the existence of the partnership. Then, if there is a partner who is deprived of his share of sharing, right, who is deprived of his right of sharing the profits, then even though on deed he is a partner, but actually he is not a partner. And if there are some persons who are sharing the profits of firm, of a business, of an association, right, just by sharing the profits they do not become partners. Examples, 4 examples मैंने दिए थे. First example was a manager getting his remuneration as a fixed percentage of net profit.
सेकंड मैंने एग्जांपल दिया था, a money lender who gets interest which is on like which is dependent on the profit, or he is getting one share in the profit as his interest. थर्ड एग्जांपल मैंने दिया था कि सेलर ऑफ गुडविल getting remuneration for his goodwill or consideration for goodwill, right, through profits. We are giving him one share of the profit for the money payable on account of goodwill purchased from him. Does not make him a partner, and the family member of deceased partner getting share in the profits as an annuity does not make them partner, because there does not exist mutual agency relationship. So sharing of the profit has to be there, but that is not a conclusive evidence. What is a conclusive evidence? What is a acid test? What is the final test? That is existence of mutual agency is very important, right, to make that association or relation as a partnership. What do you mean by mutual agency? Try to understand. A partner is playing a dual role of a principal as well as an agent. If a partner takes some action on behalf of firm, he becomes agent and other partners become principals. So a partner has a right to bound other partners by his action. At the same time, he gets bound by the actions of other partners. Such relationship is called as, right, mutual agency. अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्टेंस में है तो ही वो पार्टनरशिप है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज फर्स्ट टेस्ट and second test is existence of the mutual agency, and that was clearly underlined by the Supreme Court in case KD Kamath and Company, where KD Kamath was among that 6 partners who exclusively managed the firm. He had exclusive rights, powers to manage the firm's operations of the firm. He was the only one who can borrow the funds for the firm, who used to operate the bank account, and all the major decisions were taken by him. And right, Commissioner of Income Tax CIT refused the registration of that association as a partnership under Income Tax Act, and therefore KD Kamath and Company, right, approach court, which eventually Supreme Court eventually said, right, there are 2 basic elements or 2 basic tests. If association passes those 2 tests, that is a partnership. Which was those tests? First test, sharing of the profits as per agreement from a business, and second, right, existence of mutual agency, that the firm can be carried on by all or any one of them acting for all. यहाँ पे KD Kamath was acting on behalf of all. His actions were binding to other partners. Even in some cases, agar other partners were taking some actions, even KD Kamath used to get bound by their actions. KD Kamath was managing the firm for the benefits of all the partners. Try to understand. And whatever the profit they used to share in their agreed ratio. So power किसके पास है, कौन actively part कर रहा है, that will be ignored if these 2 elements, sharing of the profits and mutual agency, are present. That is qualified as a partnership, right? ये कल हमने किया था, and I said partner plays a dual role of principal as well as an agent. यहाँ तक हमने कल सब चीजें की थी, right? Now I will continue further, right? हम इसी डिस्कशन को आगे करने वाले, right? ध्यान देना. Now I will share my screen. Try to understand. Yes. Partnership is said to be, try to understand, an extension of law of agency. क्या बोला जाता है? It is an extension of law of agency.
What do you mean by that? Partnership is an extension of law of agency because the relation between the partners is that of principal and agent, and that relation is governed by section 185, right? वो जो सेक्शंस है एजेंसी के, वो सेक्शंस उसको गवर्न करते हैं, राइट? चाहिए तो राइट मैं वो ओपन करके दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। सबसे पहले हमने वही देखे थे, देखो राइट। सेक्शन 182 to 238 of the Indian Contract talks about the provisions related to agency. So on right, partnership is an agency only. Partners are agent of each other. Their relation is a principal and agent. So we call partnership as an extension of law of agency. So partnership is an extension of agency. ठीक है, ध्यान देना, extension of law of agency. Partnership business may be carried on by all the partners or one of them acting for all. इस टर्म्स को टेक्निकली बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। इसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, आगे ये मैंने डिस्कस किया है, जस्ट मैं उसको थोड़ा, एक्चुअली ये आपको पता है, मुझे खाली उसको समझाना है। The relationship of the principal and agent is established among the partners, and this relationship is governed by law of agency. Section 18 also provides that, Section 18 of the Act also provides that, subject to the provisions of Partnership Act, a partner is an agent, right, of the firm for the purpose of business of the firm. If partner conducts some business, some activity on behalf of the firm, in the name of the firm, समझ में आ रहा है, and he has got a capacity, ये तीन conditions आगे आएंगे. A partner acts within his capacity. Second, he acts in the name of the firm. अगर ऐसे है, try to understand. And it is for the like firm. Such action, such business by the partner is business of the firm, or that action of the partner is an action of all the partners. Right? वही उन्होंने लिखा है, subject to the provisions of the act, a partner is, क्या लिखा है उन्होंने? A partner is agent of the firm for the purpose of business of the firm. Partner is treated as an agent. समझ में आ रहा है? He is an agent of the firm. This case study is very important. I will talk about this case study, Cox versus Hickman. Try to understand. Means समझाता हूँ इसको. ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी तक हमने देखी केडी कामत एंड कंपनी, राइट? अब दूसरी है हॉक्स, राइट, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। मैं वो केस स्टडी का यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जो आपके लिए इजी रहेगा। क्या हुआ था, पहले मैं वो बैकग्राउंड देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा है, राइट? अगर आप केस स्टडी पढ़ना जानते हो, अगर आप पढ़ते हो, गूगल पे सर्च करो चाहिए तो यू विल गेट, राइट, केस स्टडी मिल जाएगी। मैं उसका एक समरी बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉक्स वर्सेस हिकमैन, क्या हुआ था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये केस स्टडी कहां पे इसका रेफरेंस आता है? इस केस स्टडी का रेफरेंस आता है इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट, इन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉक्स वर्सेस हिकमैन केस स्टडी है, और ये केस स्टडी आपको याद रहनी चाहिए, ये नाम तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1860 की केस स्टडी है, पुरानी केस स्टडी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हुआ था। एक पार्टनरशिप फर्म थी, स्मिथ एंड सन्स बोल के, स्मिथ एंड सन्स, एक पार्टनरशिप फर्म है, नाम क्या है? स्मिथ एंड फर्म्स, ठीक है? दे वर डीलिंग इन आयरन, आयरन मर्चेंट थे वो। सो परचेस करना, सेल करना, लाइक दैट, ठीक है, आयरन। एक्चुअली क्या हुआ था कि दे हैड, राइट, उनके they were facing financial difficulties, उनके creditors थे, try to understand, and they were facing, the firm that is Smith and Company was facing financial difficulties, or financial problem, so they couldn't repay to their creditors. अब क्या हुआ, try to understand, जो existing creditors हैं वो पैसा मांग रहे थे स्मिथ एंड कंपनी को, बट दे एज दे वर इन प्रॉब्लम, राइट, उन्होंने डीड ऑफ अरेंजमेंट साइन की।
क्या इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, द फर्म स्मिथ एंड सन्स एंड उनके क्रेडिटर्स, इनके बीच में एक डीड ऑफ अरेंजमेंट साइन हो गई। तो इन दोनों के बीच एक डीड बन गई, डीड ऑफ अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट थी मैं समझाऊंगा, ध्यान देना। डीड ऑफ अरेंजमेंट, अंडर दिस डीड ऑफ अरेंजमेंट क्रेडिटर्स विल ऑपरेट द बिजनेस ऑफ स्मिथ एंड सन्स। क्या इसमें डिसाइड किया गया कि क्रेडिटर्स विल ऑपरेट द बिजनेस ऑफ स्मिथ एंड सन्स एंड उससे जो भी प्रॉफिट आएगा उस बिजनेस से, दैट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ टू द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स ही बिजनेस मैनेज करेंगे एंड जो भी प्रॉफिट आएगा क्रेडिटर्स वो अपने अपने पैसे ले लेगा एंड देन स्मिथ एंड सन्स वो अपना अपना बिजनेस करेंगे, लाइक दैट। समझ में आ रहा है ये डीड ऑफ अरेंजमेंट क्यों है? बिकॉज क्रेडिटर्स आर सपोज टू रिकवर देयर अमाउंट। सो स्मिथ एंड सन्स इज ए फर्म, उनके क्रेडिटर्स स्मिथ एंड सन्स are in financial trouble and therefore creditors and Smith and Sons signs a deed of arrangement under which creditors will operate the business of Smith and Sons. Now अब जितने भी उनके क्रेडिटर्स रहेंगे 10, 15, 20 जितने भी रहेंगे 100, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि all 100 creditors, all 50 creditors, all 20 creditors will मैनेज द बिजनेस। तो उन्होंने क्या किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने। किसने? क्रेडिटर्स ने। सो क्रेडिटर्स अपॉइंटेड, क्रेडिटर्स ने क्या किया, अपॉइंटेड 5 ट्रस्टीज। क्रेडिट क्या किया क्रेडिटर्स ने, उन्होंने उनमें से 5 जितने क्रेडिटर्स हैं उनमें से 5 क्रेडिटर्स को उन्होंने क्या किया, ट्रस्टीज अपॉइंट किया ऑफ दिस डीड ऑफ अरेंजमेंट। मतलब दीज 5 ट्रस्टीज विल लुक आफ्टर द बिजनेस ऑफ स्मिथ एंड सन्स, दे विल कैरी ऑन बिजनेस। जो भी प्रॉफिट आएंगे उसमें से सब क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो नाउ दीज trustees will be looking after the business of Smith and Sons. Try to understand. These trustees are actually, they are the creditors. Try to understand. ठीक है. But now there is a क्या डीड बनी है कि these trustees will represent all the creditors. They will manage the business of Smith and Sons. जो भी प्रॉफिट आएगा उससे वो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा। इनमें से एक बंदा था कॉक्स। सो जो हमारे केस स्टडी का नाम है कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉक्स वाज राइट वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द दैट क्रेडिटर्स। ये उनकी अरेंजमेंट थी। समझ में आया अभी तक क्या मैंने बोला है कि ये चल रहा है, ऐसे वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे स्मिथ एंड सन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ और अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ राइट और थ्रू द ट्रस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ध्यान देना। बाद में हुआ क्या, हिकमैन वॉज ए सप्लायर। ठीक है, हिकमैन वॉज ए सप्लायर। उसने गुड सप्लाई किए किसको, स्मिथ एंड सन्स को, फर्म को। जो कौन ऑपरेट कर रहा है, राइट, दीज ट्रस्टीज, 5 ट्रस्टीज आर ऑपरेटिंग दैट बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। He supplied goods on credit, ठीक है, and for that purpose, right, he draw a bills of exchange. हिकमैन ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। किन पे, राइट, दिस फर्म पे, which is accepted by, obviously who will accept this bill, the persons who are operating the business, that is the trustees, right, accepted the bill, that is that Cox एक्सेप्ट, ऐसे बोलो कि कॉक्स ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्चुअली दैट ट्रस्टीज डीड ऑफ अरेंजमेंट में जो ट्रस्टीज अपॉइंट है उन्होंने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया। बाद में जब वो बिल ऑनर नहीं हुआ, हिकमैन सूड, राइट, ही फाइल्ड ए केस, राइट, अगेंस्ट कॉक्स। तो हुआ क्या, ये बिल बाद में बाउंस हुआ होगा, डिसऑनर हुआ होगा, एंड देयरफॉर हिकमैन filed a case, he sued, right, the Cox. So इसलिए ये केस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ठीक है, आगे
अभी तक एक समझ में आ गया? कॉक्स का मानना, राइट, हिकमिन का मानना था कि दे शुड मेक द पेमेंट. वो बोलता है कि कॉक्स इज लायबल टू पे मी एज ही हैज लाइक एक्सेप्टेड द बिल. कॉक्स बोल रहा है कि आई एम नॉट ए पार्टनर, वी आर नॉट ए पार्टनर, दिस ट्रस्ट इज नॉट ए पार्टनर. हम जो 5 लोग ट्रस्टीज है, वी आर नॉट ए पार्टनर. नाउ सुप्रीम कोर्ट, राइट, जिन जो रूलिंग आई, कोर्ट की जो रूलिंग आई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने बोला कि these 5 people who were, right, trustees, they were not principals but they were just an agent of the firm. स्मिथ एंड कंपनी के वो एजेंट थे, they were not principal. अगर वो खाली बिजनेस मैनेज कर रहे, they are acting on behalf of the firm, but they are not principals. Try to understand, they are agent of the firm. एक्चुअली पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है. हाउएवर these trustees were just and just agent of the Smith and Sons partnership firm. So the relation between these trustees, that is Cox, and his 4 other persons जो trustees है and partnership firm is not a partner, they are not the partners, right, to understand. And therefore, right, these trustees are not liable, right, to pay that bill. Try to understand. मतलब सिंपल है कि उन्होंने इनका रिलेशनशिप देखा, किसका? दे आर मनी लेंडर्स, लाइक यू कैन से दे आर क्रेडिटर्स आर लाइक मनी लेंडर्स, एंड पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन, राइट, उन्होंने कोर्ट ने उसको जिक्र किया और बोला कि जो मनी लेंडर्स है, जो क्रेडिटर्स है, या उनकी जो ट्रस्ट है, दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट, they are not the principals, and therefore the relation between the firm and that trustees is not of a partners, but यहाँ पे ट्रस्ट जस्ट एजेंट का काम कर रही है. एंड ये थी केस स्टडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस केस स्टडी में क्या हमें मिला? इस केस स्टडी से हमें क्रक्स क्या है कि द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होती है जो पार्टनर्स के बीच में, दैट हैज टू बी ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. They should be mutual agent of each other. So, right, now try to understand क्या लिखा है इन्होंने. Case study Cox versus Hickman 1860. क्या लिखा है? A trader carried on a business. The trader was Smith and Company. Trader को क्या कौन था? Smith and Company. Try to understand. ठीक है, that is partnership firm. A trader, Smith and Company carried on his business under supervision of creditors. Supervision of creditors. वो creditors ने जो deed sign की थी, deed of arrangement, वो क्या होता है क्या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं. मैंने खाली एक बैकग्राउंड समझा तो आपको क्लिक हो जाएगा. They were carrying on their business under supervision of creditors. ठीक है. The object of carrying on a business was to pay them off out of the profits of the business. और ऐसे क्यों सुपरविजन के अंडर वो बिजनेस कर रहे थे? सो दैट उससे जो प्रॉफिट आएगा पहले वो क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे. व्हाट इज हेल्ड, राइट, बाय द कोर्ट? नो पार्टनरशिप एग्जिस्टेड बिटवीन द ट्रेडर एंड क्रेडिटर्स. दे आर नॉट म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर. दे आर नॉट पार्टनर्स ऑफ ईच अदर. It was rightly observed in this case. The law of partnership is undoubtedly a branch of law of principal and agent. There is no doubt that partnership is a branch of agency. The liability of one partner for the acts of his co-partners. अगर मैं पार्टनर हूं, right, my liability for the acts of my other partners, like acts for the firm. So उनकी जो actions हैं, I am liable for their actions. Try to understand. So जब वो एक्शन लेंगे, दे आर एजेंट ऑफ माइन एंड आई एम प्रिंसिपल ऑफ दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो क्या लिखा है, ध्यान देना. द लाइबिलिटी ऑफ वन पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द को पार्टनर्स इज इन ट्रूथ द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट. जब एजेंट कोई एक्शन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जो रिलेशनशिप होती है, सेम रिलेशनशिप जब हमारे पार्टनर्स हमारे लिए लेंगे तब रहेगी. वो एजेंट रहेगा, हम प्रिंसिपल रहेंगे. मतलब जब एजेंट प्रिंसिपल के लिए कुछ काम करता है, प्रिंसिपल इज लायबल. एग्जांपल मैंने अब हमने कंसाइनमेंट का मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं.
कंसाइनमेंट में क्या होता है कि कंसाइनी incurs expenses for the consignment and for those expenses consignor is liable to reimburse, अगर याद होगा तो, right? So the action of the consignee agent of incurring expense makes liable to consignor to reimburse them. So वही यहाँ पे भी है, right? When a partner takes action, however, consignee are not partners, right? To understand, they are consignee is an agent and consignor is a principal. Actions of the agent bounds the principal. ये जो एजेंसी का लॉ है, ये जो एजेंसी है, वही एग्जैक्टली अप्लाई होती है कहाँ पे? पार्टनरशिप में, जहां पे इस पार्टनर जब एक्शन लेता है, his actions like makes liable to other partners. समझ में आ रहा है? So वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है, when two or more persons are engaged as partners in ordinary trade, each of them has an implied authority from others to bind all others by the contracts enter into, right, according to usual course of business of that trade. मतलब when partners have come together, when they are doing business under partnership, इसका ही मतलब है every partner has implied authority. Implied मतलब by default. Right? Partner have got implied authority given by law. Law ने उनको authority दी है क्या? They can act on behalf of the firm and their actions will bound, right, will bind other partners. क्या है? So when two or more persons come together under partnership, an action of, right, one partner binds another is simple underline, and वो उसपे उन्होंने एक केस दी है जो है कॉक्स वर्सेस हिकमैन. ठीक है, मतलब इसमें देखा जाए ना, कॉक्स था वो ट्रस्टी था, हिकमैन सप्लायर था, उसमें फर्म का कोई सवाल ही नहीं है. जो हिकमैन ने बिल डिसऑनर हुआ इसलिए उसने कॉक्स को, राइट, केस में कोर्ट में खींचा था, एंड देन कोर्ट सेड कॉक्स इज नॉट ए पार्टनर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ए पार्टनर एज्यूम्स टू-फोल्ड कैरेक्टर, ये कल हमने डिस्कस किया. He is an agent of the firm as far as, right, his dealings with the outside world for the purpose of the business of the firm are concerned. A partner is an agent for the outside world. Try to understand. ठीक है, then he can bind the firm by its act. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला. A partner will bind the firm मतलब other partners. ठीक है, by his act provided the acts are within the scope of his authority, right? उसके authority में होना चाहिए. Second, those actions or those acts are in the name of the firm and they are done for the purpose of business of the firm. ये तीन conditions अगर satisfy होते हैं तो those actions will make other partners liable. Example, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. A, B and C are the partners. ठीक है, A, B, C are the partners. They are dealing into stationaries. They purchase the stationery, they sell the stationery. C partner, example, एक example दे रहा हूं मैं, right? वो नवनीत वालों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि he purchases books, suppose 10 lakhs की ऑर्डर उसने रखी, and he purchases books in the name of the firm. Try to understand. उसकी जो एक्शन है, सी की जो एक्शन है, इट इज विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बिकॉज एबीसी आर डीलर्स इन स्टेशनरी ओनली. बुक्स, दे परचेज द बुक, दे सेल द बुक. सो व्हेन एबीसी में से सी जब नवनीत के पास अप्रोच करेगा, ही प्लेस द ऑर्डर ऑफ ₹10 lakhs. सो नवनीत वाला जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, व्हेन ही विल सप्लाई बुक्स टू एबीसी पार्टनरशिप फर्म, नाउ ए एंड बी कैन नॉट डिनाई कि हम पे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते. वो तब ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये सी ने परचेस किया, हमने नहीं परचेस किए. यू आर ए पार्टनर एंड सी हैज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, राइट? इट इज विद इन हिज स्कोप बिकॉज बुक्स आर गुड्स ऑफ द फर्म. सो पार्टनर हैज एन ऑथोरिटी टू बाय द गुड्स. बाय डिफॉल्ट इट इज एन इम्प्लाइड ऑथोरिटी, इट इज गिवन बाय द लॉ. अगर आप पार्टनर बोल रहे हो तो उसको कुछ बाय डिफॉल्ट लाइक ऑथोरिटीज रहेंगे ना. तो ही इज नॉट परचेसिंग सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह. आप बुक्स में बिजनेस कर रहे हो और लैंड वगैरह अलग कुछ परचेस कर रहा है, तो इन दैट केस कि सब पार्टनर्स की ऑथोरिटी होनी चाहिए. एग्जांपल, एबीसी आर बुक डीलर्स एंड स्टेशनरीज में काम कर रहे हैं
एंड सपोज सी कोई लैंड परचेस करता है, तो सेलर ने भी एक बार सोचना चाहिए, यार इनका ये लैंड परचेस करने आया है, ये फर्म का नाम ले रहा है, तो लेकिन ये लैंड क्यों परचेस करे, उसने एक बार सोचना तो चाहिए ना। बट अगर कोई बुक्स का बिजनेस कर रहा है और बुक्स ही परचेस करना चाहता है, तो वो क्यों सोचेगा? सिंपल चीज है. सो दैट इज विद इन हिज स्कोप, राइट, स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. He purchased not for his personal name, in his personal name, but he signed, he purchased in the name of the firm. एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में जब नोटिस आती है, प्रिंसिपल के नीचे लिखा होता है, राइट, प्रिंसिपल वाडिया कॉलेज, प्रिंसिपल बीएमसीसी कॉलेज, प्रिंसिपल XYZ कॉलेज. So he signs that on behalf of the college. Try to understand. So, right, जो भी एक्शन है पार्टनर की, इट विल बाइंड अदर पार्टनर्स प्रोवाइडेड वन, इट इज विद इन हिज ऑथोरिटी, scope of his authority. First. Second, it is in the name of the firm. And third, they are done for the purpose of business of the firm. ये बिजनेस, फर्म का बिजनेस है ना कि स्टेशनरी परचेस करना और सेल करना. सो दिस इज विद इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, अगर सी खुद के नाम पे परचेस करता है गुड्स, इन दैट केस ए एंड बी आर नॉट लायबल टू पे 10 lakhs to the Navneet. Try to understand. But as he has purchased in the name of the firm, it is within their scope. Obviously, every partner has the right to purchase the goods and to sell the goods. Right? उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है. And third, right? क्या? It is their business. Try to understand. In that case, A and B cannot deny. Try to understand. समझ में आ रहा है? So they must pay to Navneet rupees 10 lakhs. Try to understand. The action of C have like binding obligation to A and B because his action is within the scope of authority. Second, it is in the name of the firm. And third, right, it is for the purpose of business of the firm. Because उनका वो purchase करके बाद में क्या करेंगे, वो sale करेंगे. मैं एक और example देता हूँ, simple example. Actually, it is not that much related, but you can understand what do you mean by in the name of the firm. एग्जाम्पल आपको पता होगा, वो हार्दिक पांड्या करण जौहर के कॉफी विद करण शो पे गया था और कुछ तो पागल जैसे बड़बड़ करके आया था, राइट, मैं करके आया वगैरह ऐसे उसके कोई तो स्टेटमेंट थे, अगर आपको पता होगा तो, राइट. उसके बाद उसको इतना क्रिटिसाइज किया गया एंड विराट कोहली एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, राइट, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इट इज नॉट द व्यू ऑफ द Indian cricket team, it is the view of, right, a individual person. Because ये जो चीज है, that is not their scope, it is outside their scope. Try to understand. इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट टीम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. ऑब्वियसली उसको पनिशमेंट हुई, जो कुछ भी है वो चीजें अलग है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, कल जाके सपोज विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, बोल और कुछ टीम रिलेटेड अगर कोई सीक्रेट्स रिवील करता है, he will be held liable because, right, it is within his scope, he is a captain, right, and obviously अगर कैप्टन है तो वो चीजें उसके राइट में रहेगी. Try to understand. And his actions will be like liable for the cricket board as well. Try to understand. I simply mean हमें, right, हमें डिसाइड करना है कि हर पार्टनर की ऑथोरिटी क्या है, राइट. तो आगे जाके नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे देयर आर राइट्स ऑफ द पार्टनर, एट द सेम टाइम देयर आर ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर. राइट्स comes with an obligation as well, right, on responsibilities, right. Rights of the partner are, some of the rights are given by the law and some of the obligations are given by law. So right of the partner, right, some laws, rights given by law are called as implied authority, implied rights. And one of that right is purchase and sale of goods on behalf of the firm. So जब ये सी बुक्स परचेस कर रहा है from Navneet, who, right, ABC खुद बुक्स परचेस करके सेल करे, उनके बिजनेस है, उनके गुड्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, विद इन देयर ऑथोरिटी रहेगा, राइट. दूसरी बात, वो फर्म के नाम पे परचेस कर रहा है, खुद के नाम पे नहीं परचेस कर रहा है, फर्म पे नाम पे. एंड थर्ड, दैट इज अ, राइट, दैट एक्शन हैव बीन डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. अगर ये चीजें हैं तो A, B and C all have to pay to Navneet. समझ में आ रहा है? So agent, try to understand. A partner plays dual role. He is an agent as well as principal. Whenever he takes action, his actions will bind other partners provided the three conditions, right?
it is within his scope, it is in the name of the firm, and it is for the purpose of business of the firm. He is a principal so far as other partners are concerned. Yes. At the same time, he is a principal as well. He is an agent as well as principal. The relation between the partners among themselves is that of the principals. They are principals of each other. They are agent of each other. So what is the final answer? The law of partnership governing the relation of the partners among themselves, inter se, right, and with the outside world is an extension of the law of principal and agent. So simply, law of partnership is an extension of law of agency, and that is given by the case Cox versus Hickman. समझ में आ रहा है? So ये सब चीजें ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनर्स कोई भी एक्शन लेने के पहले एक दूसरे से बात करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए. अगर कभी एक्सेप्शनल केसेस में जब कभी ऐसे क्वेश्चंस अराइज होता है तो हम ये सब चीजें देखते हैं कि वाज इट इज विद इन हिज स्कोप, राइट, फर्म इज, वाज इट डन इन द फर्म्स नेम, वाज इट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस of the firm. अगर वैसे है तो other partners will be held liable. Then next part is a formation of the partnership. ठीक है, it's very simple. Partnership is a result of what? Contract. It is result of an agreement. क्या लिखा है ध्यान देना, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है. ये partnership is based on agreement. The partnership agreement may be made orally or in writing or may be implied from the course of dealings among the partners. So it is out of agreement. That agreement can be expressed oral or writing, or it can be implied. ठीक है, आगे क्या लिखा है ध्यान देना. However, all the essential elements of the valid contract must be present. Essential elements of the contract, actually we are referring to the Contract Act. So जब contract होता है उसमें कौन कौन से essential elements होते हैं? There are 9 to 10 essential elements that you will learn in contract. Like there must be 2 parties. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए. प्रॉमिस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए. समझ में आ रहा है? उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए. हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते तो उसके पीछे कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, कंसिडरेशन होना चाहिए. वो लीगल होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए. उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो पार्टीज है, 2 मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को. They should be competent to enter into contract. Means there are many essential features. मैं उसके यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बट इतना समझ लेना कि partnership is in contract and all the essential elements of the contract should be present in this contract as well. There must be free and genuine consent. So यहाँ पे उन्होंने हमें some of the elements of the contract दिए कि consent होनी चाहिए. उस contract को उस parties की consent होनी चाहिए. They should agree with this contract. एंड वो फ्री होनी चाहिए. हमने फोर्सफुली किसकी कंसेंट नहीं ले सकते. अगर मुझे किसी से शादी करनी है, मैं वो फ्रीली एक्सेप्ट करना चाहिए तो ही वो शादी या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. हम फोर्सफुली किसको नहीं कर सकते. इन दैट केस दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. सो जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आ रहे उनकी जो कंसेंट रहेगी दैट शुड बी फ्री, जेन्युइन होनी चाहिए वो. ठीक है, फोर्सफुली कोएर्शन के थ्रू लाइक मार धर करके वो कंसेंट नहीं है. गन रख दी और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को बोला, दैट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट टू अंडरस्टैंड. देन राइट, देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मैंने उस दिन बोला देयर आर 3 पार्टीज टू द लाइक सेक्शन 11 को मैंने रेफर किया था ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. राइट, मेजर, राइट, ऑफ साउंड माइंड, एंड थर्ड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो ऐसे बंदों ने ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए. So simple words में try to understand. Partnership is out of agreement. I means it is out of a contract. And वो contract के लिए जो भी contract के essential elements रहते हैं वो present होने चाहिए. इतना भी समझ में आए, it's more than enough. The object of the partnership should be lawful. Because contract should be lawful, तो partnership भी क्या होनी चाहिए? Lawful होनी चाहिए. And other legal formalities should be complied with. मतलब अगर उसको law के लिए document होना चाहिए तो वो document partnership में होना चाहिए. वो सब चीजें, right, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, राइट, वो सब चीजें पार्टनरशिप में होनी चाहिए. बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस टू द वैलिड एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हमने क्या बोला, ध्यान देना. पार्टनरशिप इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट. एंड
ये कॉन्ट्रैक्ट हम किस में स्टडी करते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्टडी करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सेक्शन 9 सेक्शन 11, राइट? These sections of Indian contract talks about the elements of the contract, essential elements of the contract के बारे में वो बात करता है। So वो सब प्रेजेंट होने चाहिए, समझ में आ रहा है? So वो कौन से एलिमेंट्स है? यू विल लर्न इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। खाली इतना समझ लेना कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब पार्टनरशिप में होनी चाहिए, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। हाउएवर देयर आर टू इसेंशियल एलिमेंट्स, राइट, जो पार्टनरशिप में एब्सेंट होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एलिमेंट्स है, इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो इसेंशियल एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स पार्टनरशिप में नहीं होते, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। कौन से? एक, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला था पार्टीज शुड बी कंपिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें माइनर कैन नॉट बी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, ये पार्टनरशिप में नहीं लिखा है। वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज ए कंपिटेंट पार्टीज एंड माइनर इज नॉट ए कंपिटेंट पार्टी, मतलब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सेप्शन है, माइनर पार्टनर, a minor may be admitted to the benefits of the partnership with the consent of all other partners. Yes, this is an exception. So हमने बोला कि अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होने चाहिए। आई डू एग्री विद दिस एक्सेप्ट टू राइट थिंग्स। वन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर इन पार्टनरशिप ए माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर हिज बेनिफिट। दिस इज वन एक्सेप्शन। एंड सेकंड एक्सेप्शन इज कंसिडरेशन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। मैंने आपको अकोमोडेशन बिल के बारे में जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर्स अकाउंट्स में मैंने बोला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ टू टाइप्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते ट्रेड बिल्स और दूसरे होते अकोमोडेशन बिल। जो आपको पता है वो मैं समझा रहा हूं। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रेड बिल कौन किस पे ड्रॉ करता है? क्रेडिटर डेटर पे बिल ड्रॉ करता है। दिस इज अ वैलिड बिकॉज इन दोनों के बीच में एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है एंड दिस इज अ वैल्यू। सो उनका रिलेशन इज डेटर क्रेडिटर लाइक दैट। देयर इज अ कंसिडरेशन, जो बिल ड्रॉ हो रहा है उसके लिए कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है? क्रेडिटर ने डेटर्स को गुड्स अप्लाई किए हैं, सो दैट इज अ कंसिडरेशन, मनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये बिल वैलिड है। हाउएवर अकोमोडेशन बिल में देयर इज नो कंसिडरेशन, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों ने कुछ परचेस सेल नहीं किया है, जस्ट हमें पैसे चाहिए इसलिए हम एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हम जो बिल ड्रॉ कर रहे हैं टू अकोमोडेट ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर, उसके पीछे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसके पीछे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको उस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। देयर इज नो कंसिडरेशन। सच बिल इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल व्हेन देयर इज नो डेटर एंड क्रेडिटर, फिर भी बिल ड्रॉ हो रहा है। एग्जांपल, मैं और मेरा फ्रेंड है, मुझे 50,000 चाहिए, उसको 50,000 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उस पे बिल ड्रॉ करता हूँ, वो एक्सेप्ट करके मुझे देता है। 1 लाख का बिल सपोज मैंने ड्रॉ किया, या 1,10,000 का बिल ड्रॉ किया, मैंने 1,10,000 का बिल ड्रॉ किया उस पे, वो बोलता है परचेस सेल, मैं बोलता हूँ जाने दे, क्या परचेस सेल का कोई लेन देन नहीं, मैं तेरे पे बिल ड्रॉ कर, तू साइन कर, एक्सेप्ट कि यू विल पे मी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो बिल लेके मैं बैंक में गया, बोला देखो ये बिल इसने एक्सेप्ट किया है, वो 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद ऑनर करेगा, आई वांट टू डिस्काउंट द बिल। बैंक 1,10,000 का बिल सपोज 1 लाख में डिस्काउंट किया, तो बैंक से मैंने लिए 1 लाख, तो 1 लाख में से मैंने उसको 50 दिए, मेरे पास 50 रखे, और बाद में राइट जब सेटलमेंट का टाइम आएगा तब मैं उसको 50,000 दे दूंगा, जो भी रहेगा मैं उसको दे दूंगा, तू बोलो तू ऑनर कर। अब इसमें हम एक दूसरे को हेल्प के लिए बिल ड्रॉ करें, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। एंड इन इंडिया ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होना ही चाहिए ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर कोई भी एग्रीमेंट जिसको कंसिडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हाउएवर एजेंसीज में जो प्रिंसिपल एजेंट है उनमें तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता है, तो देयर इज नो कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शन होगा तो कंसिडरेशन रहेगा।
समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल एजेंट में वैसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, देयर इज अब्सेंस ऑफ द कंसिडरेशन, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. सो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं रहता. लाइक कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, डज नॉट मेक कंसाइनी डेटर, एंड ना ही कंसाइनर क्रेडिटर बनता है. उनके बीच में एज सच देखा जाए देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एजेंसीज के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, एंड पार्टनरशिप इज एजेंसी. सो बेसिकली मैंने क्या चीज बोली कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जो चीजें जरूरी है ना, वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए. हाउएवर, टू थिंग्स और टू एक्सेप्शंस. एक है, इन Indian contract, minor cannot enter into contract. However, in partnership, minor can become a partner, can be admitted to the benefits. And second बोला कि contract, कोई भी contract है, as per Indian contract, there must be consideration, there must be value involved, तो ही वो contract हो सकता है. But under partnership contract, between the, जब वो partnership में साथ में आके contract करते हैं partnership का, then at that time no one is a buyer, no one is a seller. वो they are just a persons who come together to carry on a business. So उनमें कोई consideration नहीं है. So the two valid elements of the contract are not present in partnership contract. One is related to minor and second is consideration. ठीक है? Consideration, as no consideration is required to create agency, no consideration is required to create the partnership, which is an extension of law of agency. तो हमेशा याद रखना, there can be a question, does partnership requires consideration to form the partnership? अगर विदाउट कंसिडरेशन पार्टनरशिप बन सकती, क्या क्यों नहीं बन सकती? यस, बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एजेंसी, एंड एजेंसी जब बनती है देयर इज नो लाइक कंसिडरेशन, नो वन इज अ सेलर, नो वन इज अ बायर. वो एक्चुअली वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एजेंसी रिलेशनशिप्स आर विदाउट कंसिडरेशन, therefore partnership is also can be formed without consideration. ठीक है? So these are two exceptions. Simple words में बोलता हूँ. आप बोलोगे सर which are the elements of the valid contract? That can be one question. You have to refer to Indian contract, जो आप अलग से in detail सीखोगे. Try to understand. तब आपको वो 9-10 जितने भी elements है वो वहां पे सीखने को मिलेंगे. उनमें से मैंने बोला कि देयर मिनिमम 2 parties होनी चाहिए. Those parties should be competent to enter into contract. ऑफर होनी चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सब चीजें हैं जिसके थ्रू राइट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. अगर ये सब है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज नहीं. इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो पार्टनरशिप इटसेल्फ इज इन कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो भी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए. However, there are two exceptions in case of minor and in case of consideration. ठीक है? आगे क्या लिखा है ध्यान देना. पार्टनरशिप, व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इट्स वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें याद भी कुछ नहीं रखना है. पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट राइट which contains right the mutual relations, that is mutual rights and obligations of the partners. ठीक है? क्या लिखा है ध्यान देना. द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट क्रिएटिंग पार्टनरशिप, जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. ठीक है? दैट एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और implied, and latter, that is implied, may be inferred from the conduct or the course of dealings of the partners or the parties to the contract. ठीक है? However, it is in the interest of the partners that the agreement must be in writing. It is not mandatory. Try to understand. Agreement may be expressed or may be implied. Express में in writing or oral. But it is in their interest only कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए. बिकॉज बाद में अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, अगर वो लिखित है, अगर वो राइटिंग में है, तो वी कैन ऑलवेज रेफर दैट. समझ में आ रहा है? तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू हैव एग्रीमेंट in writing. It is not mandatory. Try to understand.
एंड जब अगर आप कभी फ्यूचर में पार्टनरशिप में किसी के साथ जाते हो तो मेक श्योर देयर इज एग्रीमेंट, और आप एग्रीमेंट ठीक से पढ़ो, राइट? उस पर फिर ही साइन करना, अदरवाइज साइन मत करना, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स होते हैं अदरवाइज, ठीक है? द डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स दिस एग्रीमेंट of mutual rights and obligations. Deed talks about mutual rights, एक दूसरे के क्या rights है with respect to each other, and their obligations with respect to each other. Mutual rights and obligation is called as deed. Agreement अगर writing में है तो वो बनता है deed, and फिर उस deed को हमें register करना है नहीं करना है, that is an optional. It usually contains provisions related to नेचर एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस. डीड में क्या क्या होता है, मैं आपको एक डीड का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, मेरे पास है, ठीक है? उसमें डीड में क्या क्या हो सकता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस, आपका एचओ क्या है, हेड ऑफिस क्या है, उस फर्म का नाम क्या है, किस नाम के अंडर आप कर रहे हो, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर कौन कौन है, उनका एड्रेस क्या है, फर्म का ड्यूरेशन क्या होगा अगर ड्यूरेशन है तो, ठीक है? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ड्रॉइंग्स क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या रहेगा, इवन ड्रॉइंग्स की भी लिमिट होती है कि इसके आगे पार्टनर्स मे नॉट ड्रॉ, राइट? लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी एक आधा पार्टनर कंटिन्यूअसली ड्रॉ ही करता रहेगा. सो देयर आर लाइक लिमिटेशंस ऑन ड्रॉइंग्स एज वेल एज पर डीड, उन्होंने डिसाइड किया करना चाहिए बेसिकली. गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा ऑन डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कंसिडर किए जाएंगे, कितने बेस ईयर्स लिए जाएंगे, समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट कौन करेगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, कौन पार्टनर सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, कौन परचेस देखेगा, कौन बैंक देखेगा, राइट? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए 10 पार्टनर है सपोज, उसमें से मिनिमम 2 पार्टनर ने साइन करनी चाहिए, तो वो कौन रहेंगे, समझ में आ रहा है? वैसे बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, जॉइंटली होगा या एक बंदा करेगा, सब मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा फर्म का वो देखा जाएगा, राइट? अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, राइट? उसके बाद आर्बिट्रेशन वगैरह, अगर कभी झगड़ा वगैरह होता है तो हम आर्बिट्रेटर, एक मध्यस्थी होता है जिसके पास हम जाते हैं. एग्जांपल, हमारे घर में झगड़ा होता है तो हम जो सीनियर मोस्ट है उसके पास जाते हैं, ही इज आर्बिट्रेटर. ऑन सिमिलर बेसिस जब पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो किसको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, आर्बिट्रेटर कौन रहेगा, राइट? The deed must be duly stamped. जब आप डीड करते हो, try to understand, it has to be stamped, right, as per Indian Stamp Act 1899, where the partnership comprises immovable property. This is another important term. अगर partnership comprises of immovable property, the instrument of the partnership must be in writing. अगर partnership comprises, मतलब I am not talking about the fixed assets. Fixed asset तो रहेंगे, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ. But जब आप partnership is surrounding your that immovable property, the deed, it has to be in writing. Deed होनी चाहिए, right? Stamped and registered under Registration Act. Because क्या होता है, जब partnership firm, अगर कोई आप इमोबल प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना होता है, ये आपने सुना होगा. अगर आप फ्लैट लेते हो, आप कोई लैंड ट्रांसफर करते हो, परचेस करते हो, तो यू हैव टू पे, आपको वो खुद के नाम पे रजिस्टर करना होता है. एंड दूसरी बात, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी होती है. तो जब आप वो करने जाओगे ना तो पहले वो बोलेंगे, बिकॉज एज पर दैट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट, जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो दे विल आस्क यू कि आपकी डीड होनी चाहिए. तो अगर आप पार्टनरशिप में इमोबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, राइट, तो बाय डिफॉल्ट आपको रजिस्टर करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट परचेस इमोबल प्रॉपर्टी और यू कैन नॉट सेल इमोबल प्रॉपर्टी, बिकॉज उसके लिए अलग एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, विच रिक्वायर्स यू टू प्रोवाइड ऑल दोस डिटेल्स. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग. क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में? पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन भी खाली पता होना चाहिए, बाकी चीजें नहीं. दैट इज अ डेफिनेशन. The document which contains the agreement related to mutual rights and mutual obligations of the partners. ठीक है? Each contains name of the firm, right? Name and addresses of the partners, nature and place of the business, date of commencement, कब से पार्टनरशिप इफेक्ट हुई है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, राइट, कैपिटल कितना पार्टनर्स लाएंगे, क्या उनका पीएसआर रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कितने रेट पे रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमें चार्ज करना है तो कितने रेट पे हम पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट और लोन की, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका कितना इंटरेस्ट रहेगा, इफ नथिंग इज गिवन इट इज 6%,
सैलरी अगर देनी है किसी पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को, तो किस रेट से हम सैलरी देंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अदर, ये मैंने अकाउंट्स रिलेटेड, मतलब आपको जल्दी क्लिक होगा, राइट। अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे, जब डिसीज किसी की डेथ होती है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, रिटायरमेंट होता है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, लमसम किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस आर, राइट, ये जो कुछ भी रहेगा दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स एंड दैट इज रिटर्न, राइट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज partnership deed. A partnership deed should not contain any term in contravention against, contravention means against, with the provisions of the Indian Partnership Act 1932. कोई भी टर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकती। अगर जब हम पार्टनरशिप डीड करते, जो भी प्रोविजंस रहेंगे, जो भी टर्म्स पार्टनर में रहेंगे, दैट कैन नॉट बी अगेंस्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक्ट हमें गवर्न करने वाला है, उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं रख सकते। एग्जांपल, इंडियन, राइट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज ए माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द benefits and he will share only profits, he will not share losses, and his liability is limited to his share in the profit or his share in the property. This is given in the, right, act, Indian Partnership Act. Now by agreement, नहीं हम agreement किया कि minor की liability unlimited रहेगी, not allowed, because the terms of the partnership are against the terms of the act. That is not possible. हम पार्टनर को लॉसेस में भी शेयर, हिस्सेदार करेंगे, नो, बिकॉज दैट टर्म इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आईपीए। सो आप टर्म्स रख सकते हो जो आपकी मर्जी है, एक ही पार्टनर काम करेगा कोई दिक्कत नहीं, रखो, बिकॉज एक्ट इटसेल्फ सेज एक्शन कैन बी टेकन बाय ऑल पार्टनर्स और वन ऑफ देम फॉर, राइट, इन लाइक वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबको काम करने को लगाना है, सब एक्टिव पार्टनर से चलेगा, इट्स योर चॉइस, बट व्हाटएवर टर्म्स शुड बी इन कंप्लायंस विद द लॉ एंड शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड सो ये था इंपॉर्टेंट। सो टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी अगेंस्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जिस इंटेंशन से पार्टनरशिप एक्ट है, उस इंटेंशन को उसने नहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। एंड कल मुझे किसी ने तो पूछा था कि कैन वी, आई थिंक चैटर्जी मैम ने मुझे पूछा था कि हम पार्टनरशिप को रिवाइज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट हैज टू बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो डीड होती है ना, अगर आप रियल लाइफ में डीड देखोगे, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, आई कैन नॉट शो एक्चुअल डीड, देखोगे ना, एवरी पेज के नीचे जितने पार्टनर्स है ना वो सब साइन करते हैं। इट मींस दे हैव रेड ईच एंड एवरी पेज। ऐसे नहीं होता कि एंड में ही साइन करते हैं, हर पेज पे साइन करते हैं आजकल पार्टनर। मतलब बाद में कोई पेज निकाला उसमें से, ऐसे नहीं होगा, और नया पेज डाल दिया जानबूझ के, कि कोई ऐसे नहीं कर सकता, एवरी पेज पे साइन करते हैं पार्टनर्स। मतलब इतना होता है, ऐसे नहीं तो आप क्या करोगे, 10 पेज की डीड है और लास्ट पेज पे साइन करोगे, बीच वाले पेज कोई भी चेंज कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो वो ना हो, इसलिए हर पेज पे साइन करते हैं, एंड वैसे ही होना चाहिए। अगर आप कभी फ्यूचर में पार्टनर होते हैं किसी फर्म में, तो ये आपने 10 बार चेक करना चाहिए डीड। So, to bring about any change in the terms of the partnership deed, consent of all partners is needed. अगर आपको कुछ भी टर्म चेंज करनी है डीड में, right, you can change at any point of time. However, that must be accepted by each and every partner. Because हर पार्टनर को फिर से नए डीड पे क्या करना होगा, साइन करना पड़ेगा। You have to amend the deed. समझ में आ रहा है? You have to revise the deed. And अगर आप रजिस्टर फर्म है तो वो आपको रजिस्टर ऑफ फर्म के पास फिर से सबमिट करनी पड़ती है बाय पेइंग ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ द फीस, जो कुछ भी फीस रहेगी वो। डेली चेंज नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, मतलब वही आपको काम है, वो ऐसे नहीं है। आई विल शो यू वन फॉर्मेट ऑफ द डीड। ठीक है, मैं आपको डीड का एक फॉर्मेट दिखाता हूं, राइट, एक सेकंड खाली ध्यान देना। मेरे पास एक फॉर्मेट है, आई विल शो दैट फॉर्मेट टू यू। ओके, ठीक है, दिस इज अ डीड। क्या क्या है ये, एक्चुअल डीड है, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास। आप बोलोगे सर ऊपर ऐसे स्पेस क्यों रखी है? बिकॉज यहाँ पे स्टैम्प, वो स्टैम्प पेपर पे प्रिंट की जाएगी, तो यहाँ पे एक स्टैम्प रहेगा, स्टैम्प पेपर पे साइन हो प्रिंट
फर्स्ट पेपर आपका स्टैम्प पेपर रहेगा, बाकी लीगल पेपर्स रहेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज एंटर्ड इनटू, राइट। अब यहाँ पे दिस डेट 12th, अभी रिसेंटली ये मैंने ड्राफ्ट की है इसलिए मुझे पता है, ये मेरे पास उसकी शॉर्ट कॉपी है। 12th मार्च 2020 अभी की, अगर आप देखोगे 12th मार्च को, राइट, मेरे बर्थडे के एग्जैक्टली 2 दिन पहले मैंने ड्राफ्ट की थी, 12th मार्च 2020। सो आई सिंपली मीन दिस पार्टनरशिप हैज स्टार्टेड 12th मार्च 2020। दीज आर द पार्टनर्स, पार्टनर का नाम है, पार्टनर का पैन नंबर है, आप देख सकते हो, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। सो जितने पार्टनर्स है उनके डिटेल्स है, एंड दिस इज अ पार्टनर एंड देयर वर 3 पार्टनर्स। सो क्या क्या आ गया, राइट, पहले आ गया, राइट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, उसके बाद आ गया नेम ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। मैं एक फॉर्मेट में अंदर नहीं जाऊंगा, मैं खाली फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कौन कौन पार्टनर्स है। आगे क्या लिखा है, रेफर्ड हियर इन एज पार्टनर्स एंड, राइट, सो वेयर एज, तो उन्होंने लिखा है उनका बिजनेस। द पार्टनर्स एंटर टू वर्क टुगेदर एज ए पार्टनर टू कैरी ऑन ए बिजनेस ऑफ, क्या बिजनेस करने वाले, यहाँ पे वो लिखा है उसको, टू लीड द बिजनेसेस इन इको फ्रेंडली, राइट, इन एन इको फ्रेंडली वे बाय इनोवेटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो उनका बिजनेस था, और उन्होंने आगे लिखा होगा क्या बिजनेस करने वाले हैं। सो नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करने वाले हैं। डेफिनेशन, इस डीड में जो जो वर्ड्स यूज किए, लाइक डीड का मतलब क्या, डीड मींस दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये वाला। एनुअल रिपोर्ट मींस योर बैलेंस शीट, पी एंड एल। कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या, राइट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये टर्म्स रहेंगे आगे यूज किए होंगे, उसके उन्होंने मीनिंग्स दिए, राइट। एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उन्होंने आगे जीएसटी यूज किया होगा, दैट इज एज पर लॉ। ऐसे उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उसके मीनिंग्स दिए। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, in this deed unless the contest otherwise requires the following rules of the interpretation shall apply, right, words referring to one gender includes every other gender, generally हम he मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है लॉ, इट ऑल्सो इंक्लूड शी, समझ में आ रहा है, तो हमें वो समझ में आना चाहिए। सो उन्होंने वो लिखा है, राइट, क्या रूल्स है, जब हम डीड पढ़ेंगे तो उसमें हमने क्या समझ, हम क्या दिमाग में रख के वो डीड पढ़नी चाहिए, राइट। नेम ऑफ द पार्टनरशिप आ गया, जो भी उनका नाम है, ठीक है। पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप, वही तो ऊपर बिजनेस था, टू लीड द बिजनेसेस इन इको फ्रेंडली वे वगैरह, राइट, दैट इज देयर पर्पज, दैट इज देयर बिजनेस, राइट। देन आगे आप आगे देख सकते हो, राइट, द एक्शन इज लॉफुल विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो ये जो बिजनेस करने वाले दैट इज लॉफुल, उन्होंने लिखा भी है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द पार्टनरशिप, देखो क्या लिखा है उन्होंने, उनका जो भी रहेगा, अरे पुणे से वो उनका एड्रेस लिखा है। सो पहले लिखा नेम ऑफ द, पहले आ गया डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, फिर आ गया आपके पार्टनर्स के नेम, फिर आ गया व्हाट इज योर बिजनेस, फिर प्लेस ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट कब से हो रही है, 12th मार्च 2020 से हो रही है, ठीक है। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कितने कितने कैपिटल डालने वाले हैं, राइट, वो उन्होंने लिखा आगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 12% पर एनम। इनकम टैक्स में 12% पर एनम है, इसलिए जनरली लोग 12% पर एनम ही रखते हैं। इनकम टैक्स में 12% पर एनम है, इसलिए यहाँ पे भी 99% में आप 12% पर एनम देखोगे, मतलब दोनों सेम हो जाते हैं फिर, ठीक है। कैपिटल विड्रॉवल्स, capital may only be withdrawn from the firm in accordance with this deed if all the partners provide their express consent to such withdrawal or as otherwise required by law. So capital withdraw कर सकते हैं, but provided all these. Additional capital का क्या criteria रहेगा, देखो, interest and authority, मतलब ये उनका PSR के बारे में लिखा है, they are equal partners, ठीक है। आगे profit and loss कब, एवरी 31st मार्च पे फाइंड आउट किया जाएगा, राइट। देन अकाउंटिंग का क्या रहेगा, राइट, एज पर इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, के हिसाब से हम अकाउंटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एनुअल रिपोर्ट, राइट, उस क्या क्या वो उसमें रहेगा, आप देख सकते हो, बैलेंस शीट रहेगी, राइट, ये सब चीजें रहेगी। आगे बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड्स, राइट, कौन बैंकिंग वगैरह उसके लिए क्या किया जाएगा। देन पार्टनरशिप का पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 31st मार्च एवरी ईयर, राइट। देन वोटिंग कैसे रहेगी, इन एनी वोट रिक्वायर्ड बाय द फर्म द वोट कास्ट बाय एनी पार्टनर विल बी वेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टनर्स पीएसआर। अब यहाँ पे दे आर इक्वल पार्टनर्स ना, तो
उनका वोटिंग मतलब एवरी पार्टनर विल हैव वन वोट, ऐसे पकड़ के चलो, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको दिखा रहा हूं। ऑडिट, अगर जब ऑडिट किया जाएगा फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो कैसे रहेगा, राइट, मैनेजमेंट कैसे रहेगा, एक्सेप्ट एज द पार्टनर्स में अदरवाइज एग्री इन राइटिंग ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस रिस्पेक्टिंग the management, operation and control of the firm and its business will be decided by unanimous vote among the partners, right? हर एक्शन के लिए, हाँ उन्होंने बोला भी कि कोई केसेस में पार्टनर डिसाइड करेंगे कि यूनानिमस की जरूरत नहीं। एक आधा पार्टनर प्रेजेंट ही नहीं है तो आप क्या करोगे? यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट हिम, यू कैन नॉट टेक हिज वोट। तो ऐसे केसेस में आप जितने प्रेजेंट है उनका वोट लोगे। सो उन्होंने बोला है कि जहां जहां पे पॉसिबल है हम यूनानिमस वोट के लिए जाएंगे। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, इट इज एग्रीड, बहुत बड़ा है ये, राइट। सो क्या रहेगा, मीटिंग्स ऑफ द पार्टनर, राइट, रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी हेल्ड मंथली, मंथली मीटिंग होगी। एनी पार्टनर कैन कॉल ए स्पेशल मीटिंग टू रिजॉल्व इश्यूज, अगर कुछ झगड़े बिगड़े होते हैं या कुछ इश्यू है तो उसके लिए एक स्पेशल मीटिंग बुला सकता है, कोई भी बुला सकता है। ऑल मीटिंग्स विल बी हेल्ड एट द टाइम, राइट, इन लोकेशन एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, राइट। एडमिट a new partner, क्या लिखा है, new partner may be admitted in the firm with a unanimous vote of the existing partners, right? Then voluntary withdrawal of a partner, retirement होगी तो कैसे रहेगी? देखो ना, आप ये नाम सुने आपने, involuntary withdrawal of a partner, right? उसके बाद dissolution, right, पार्टनर, उसके बाद dissolution of the firm, उसके बाद valuation of interest, राइट, प्रॉफिट कैसे डिसाइड किया जाएगा, गुडविल का क्या रहेगा, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी असेस्ड एट एन अमाउंट टू बी डिटरमाइंड बाय अप्रेजिंग यूजिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो अकाउंट्स में जैसे गुडविल निकालते हैं वैसे हम निकालेंगे। बोरोइंग्स का क्या रहेगा, राइट, पार्टनरशिप के बाकी रहेंगे, राइट, टाइटल टू द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, राइट, ये सब ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अब देखो ना कितना सारा है। Actions prohibited, no partner will do any act in contravention of this deed, ठीक है। deed govern the relation of the partners, try to understand। उसके बाद आया है indemnification, मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए खर्चा करता है, पार्टनरशिप के लिए खर्चा करता है, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, तो अदर पार्टनर्स विल कंपेंसेट हिम, इंडेमनीफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई पार्टनर टेक्स एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म बट उसके जेब में से पैसे डाले तो अदर पार्टनर्स विल रिम्बर्स हिम, तो इंडेमनिफिकेशन की बात आ गई। लायबिलिटी कैसे रहती है, पार्टनर्स, ए पार्टनर विल नॉट बी लायबल टू द फर्म और टू एनी अदर पार्टनर फॉर एनी मिस्टेक और एरर इन द जजमेंट और फॉर एनी एक्ट और ओमिशन डन in good faith and believed to be within the scope of the authority conferred by this deed वगैरह, राइट। तो क्या उनकी लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी इंश्योरेंस, फिर राइट उसका क्या रहेगा, उनका जॉइंट लाइफ पॉलिसी वगैरह लेंगे या नहीं लेंगे, वेवर। अब देखो ना, करेंसी ऑल इन इंडियन रुपीज, कितना सारा है उसमें, जीएसटी, अनमिसलेनियस, अमेंडमेंट्स, एनी चेंज, क्या लिखा है, एनी चेंज, अल्टरेशन, अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन इन दिस डीड must be in writing and signed by all the partners। आप चेंज कर सकते हो बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केस में क्या रहेगा, अनाउंसमेंट, नोटिसेस, लाइक गवर्निंग लॉ, राइट, एंड बाद में सबने साइन किए एंड देयर आर विटनेसेस एज वेल, राइट। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम है, 4 विटनेसेस लिए उन्होंने। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब होगा तो देखो कि कितनी बड़ी पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 18 पेजेस की मेरे पास पार्टनरशिप डीड है। सो what I want to tell you, I just want to tell you, partnership deed is a comprehensive document which decides the rights and obligations among the partners, ठीक है। So this was all about partnership deed। So आज हमने क्या क्या देखा, before I conclude there are some questions, I will take those questions as well। आज हमने देखा कि partnership is an extension of law of agency। law of agency does not require consideration, therefore in order to form a partnership there is no consideration required, ठीक है। एंड उसमें हमने देखा कॉक्स वर्सेस हिकमैन केस, राइट, which underlines the principle of mutual agency। Try to understand, a money lender or the creditors who are managing the firms, right, operations of the firm does not make that money lenders or creditors as a partner, then, right, उस केस से ये पता चला कि इन केस अगर आप म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हो तो
इसका मतलब है पार्टनर like assumes two-fold characters as a agent as well as principal. जब हम agent की बात करते हैं, right? If his actions or if he acts within his scope of authority in the name of the firm and that is for the purpose of business of the firm, I will say that action will bind all other partners. इसमें से एक भी absent रहेगा, like वो authority में है बिजनेस ऑफ फर्म के लिए, बट वो खुद के नाम पे करता है ना कि बिजनेस के नाम पे, तो अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल. बट वो उनमें अगर म्यूचुअली डिसाइड करते चल जाने दे कुछ नहीं, हमें हम बिजनेस के लिए एज्यूम करते तो हो सकता है. समझ में आ रहा है? देन राइट, फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप. मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिस, एग्रीमेंट इज अ बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप. सो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एज वेल. However, there are two exceptions. One is in case of minor and another is in case of consideration. Then what is a deed? Partnership deed is a written document which contains mutual rights and mutual obligations of the partners. And what contains the partnership? No need to remember, don't worry. ऐसे कोई नहीं पूछेगा what is included in the partnership, don't worry. खाली पता होना चाहिए. But ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप में कोई भी प्रोविजन, any term of the partnership cannot be against the partnership law. And you can change the partnership at any point of time, but with the consent of all the partners. In real life, every partner signs, right, each and every page of the partnership deed. ये भी याद रखना, ठीक है?